Hello friends, so I am back with my new lecture, that is the Wassenaar arrangement. So as you know that this Wassenaar arrangement, that is one of actually there are four MECR, that is multilateral export control regimes. So there are four such regimes which actually put control on the export of the sensitive material which can be used for civil purpose as well as military purpose. Like for example, as you already know, that military technology, like for example the parts which are used in military preparation of military equipments like warships, tanks, missiles, and the technology which is being used in that. So not only the goods but also the technology has to be protected so that it doesn't reach in the hands of the hostile state plus the terrorists and the criminals. So there are four such regimes which actually put control on export of such goods and technologies. So what are four such regimes? One of them is Wassenaar arrangement, another is Australia group, and third is MTCR, that is missile technology control regime, and the fourth one is nuclear suppliers group. So we will study all the four one by one. So in this lecture I am explaining you the Wassenaar arrangement. So I will be starting the Wassenaar arrangement lecture. It is a very small lecture, so you don't need not there is so you need not study very much detail into the Wassenaar arrangement, but the major points I will be discussing. Now, what is Wassenaar arrangement? As you know that Wassenaar is a place which is near Netherlands. So this arrangement was established in 1996 after becoming a successor to the Cold War era Coordinating Committee for Multilateral Export Control. So during the Cold War, there is a arrangement or group named as Coordinating Committee for Multilateral Export Controls. So this group is being renamed as Wassenaar, and it was established in 1996. Now, the important point which you need to understand is the arrangement is not a treaty. So it is not a treaty. It includes exchange of information by member countries in total 8 broad weapons categories like tanks, warships, aircrafts. So this is not a treaty, this is just an arrangement. So it is independent of United Nations. Okay, and those who are members of this arrangement, they are obliged to follow the norms and terms and conditions of this arrangement. Rest are independent, and it is also legally not binding because it is not a treaty, it is just an arrangement. आप ये मान लीजिए आप किसी एक एसोसिएशन का पार्ट है या ग्रुप का पार्ट है, दैट्स इट. किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन से बाइंडिंग होते हैं, दैट्स इट. बट ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता आपके ऊपर. आप एसोसिएशन में होते हैं तो आप कभी भी एसोसिएशन से रिज़ाइन कर सकते हैं, निकल सकते हैं आप. और जब भी एसोसिएशन में होते हैं तो भी आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है कि आप इसकी सारे मेजर्स मानें. बट क्योंकि बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके फॉलो करते हैं, दैट्स इट. सो बिकॉज इट इज़ नॉट अ ट्रीटी, सो द नॉर्म्स, द रूल्स, द रेगुलेशन, द गाइडलाइंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग. और ये प्राइवेट ग्रुप मान लीजिए. प्रेजेंटली देयर आर 42 कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट कंप्राइजिंग मोस्टली नेटो एंड EU कंट्रीज. तो मोस्टली ये नेटो और EU कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं. ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके मेंबर्स हैं एक्सेप्ट चाइना. चाइना इसका मेंबर नहीं है. ये फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना चाहिए. ये सेक्रेटरीट वियना में है, ऑस्ट्रिया में. मैंने CTBTO का भी सेक्रेटरीट वियना में बताया था आपको.
since this is not a treaty and therefore not legally binding, that is why it is not legally binding. So its regulations however apply only to its members. This arrangement is independent of UN. ठीक है, लीगली बाइंडिंग नहीं है. अगर आप ग्रुप के पार्ट हैं तो आपको मानना पड़ा, बट दैट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग. बट ठीक है, डेफिनेटली अगर आप ग्रुप का पार्ट है तो डेफिनेटली आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप लीगली उस हिसाब से बाइंडिंग हो जाता है. ठीक है ना. बट जो बाहर है इस ग्रुप के, और आप कभी भी इस ग्रुप को छोड़ सकते हैं. यू कैन ऑलवेज लीव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. और जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रीटी का पार्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए एनपीटी साइन कर दी, रेटिफाई कर दी, सो इट इज़ लीगली बाइंडिंग. आप उसको बाहर नहीं जा सकते. बाहर जाएंगे तो यू विल बी पेनलाइज्ड, यू विल बी पुट टू यू नो some sort of you can say penalization, or some sort of there will be some sort of you can be prosecuted also if you know don't abide by the treaty. बट अगर आप ग्रुप का पार्ट है तो ये सब जो क्रिमिनल जो ये इश्यूज होते हैं कि अगर आप ब्रीच करते हैं तो इस लेवल तक का क्रिमिनल ब्रीच नहीं माना जाता. तो ये लीगली बाइंडिंग ज़रूर होता है, बट उस लेवल का लीगली बाइंडिंग नहीं है जो कि आप ट्रीटी में होता है. तो एक ग्रुप का पार्ट है, जस्ट आप ग्रुप का पार्ट है तो यू आर अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ग्रुप. दैट्स इट. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वासेनार अरेंजमेंट? द वासेनार अरेंजमेंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड. इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड in order to contribute to regional and international security and stability. So वही जो मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट रोकना है. एक्सपोर्ट केवल इंटरनल मेंबर कंट्रीज में होगा, जो भी इसके मेंबर्स होंगे. और अगर आप बाहर कर रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करना होगा ग्रुप को कि आप किसको कर रहे हो. और आप ऐसे नहीं कर सकते, आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए. तो यू हैव टू ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, तो दोनों के ट्रांसफ़र में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी और ट्रांसपेरेंसी शो करनी पड़ेगी जो भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं. जैसे आप बैटल टैंक, वॉरशिप्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सिस्टम्स, ये कन्वेंशनल आर्म्स के अंतर्गत आते हैं. और डुअल यूज़ मतलब जो कि सिविल में भी यूज़ हो सकता है, मिलिट्री में भी. जैसे न्यूक्लियर पावर है, दैट कैन बी यूज इन फॉर सिविल यूज़, और मिलिट्री के लिए भी आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं. उसमें आपको बहुत सेंसिटिविटी रखनी है. ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसे गुड्स जो कि डुअल यूज़ है, यानी कि वो डबल दो जगह यूज़ हो सकते हैं, अच्छे के लिए भी और ख़तरे भी उत्पन्न कर सकते हैं. तो ऐसे गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी. तो वो वासेनार अरेंजमेंट इज़ ए वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. वॉलंटरी है, कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है. पीसफुल एंड मिलिट्री है. डुअल यूज़ का जो मतलब है ये लिखा है यहाँ पे. और पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स सीक थ्रू देयर नेशनल पॉलिसीज, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं इस अरेंजमेंट का पार्ट होते हैं, टू इंश्योर दैट ट्रांसफ़र ऑफ दीज आइटम्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट. सो पार्टिसिपेट जो भी कर रही है ना कंट्रीज, तो दे नीड टू इंश्योर दैट जो इनका अगर आप ट्रांसफ़र किसी दूसरी कंट्री को कर रहे हो, अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इसका अगर आप ट्रांसफ़र दूसरे देश को कर रहे हो, तो यू नीड टू इंश्योर दैट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ थ्रेटनिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी. तो आप ये नहीं कि अगर आपने पाकिस्तान को कुछ दिया तो पाकिस्तान उसको यूज़ करके इंडिया को थ्रेटन करने लगे. तो आप किसी रिस्पॉन्सिबल नेशन को देंगे जो कि उसका पीसफुल यूज़ करेगा और अपनी सुरक्षा के लिए यूज़ करेगा. वो थ्रेटन नहीं करेगा इंटरनेशनल और रीजनल सिक्योरिटी को एंड स्टेबिलिटी को, एंड आर नॉट डाइवर्टेड टू सपोर्ट सच कैपेबिलिटी. और वो जो कैपेबिलिटी है वो टेक्नोलॉजी को, मान लीजिए आपने किसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी सिविल यूज़ के लिए, तो उस टेक्नोलॉजी को डाइवर्ट ना करे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में. तो दो चीज़ें हो गई. एक तो आपको ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करनी है ट्रांसफ़र में, और अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऐसे एक नेशन को करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा उसको यूज़ करने में. ऐसे कोई हरकत नहीं करेगा कि जिससे इंटरनेशनल और रीजनल स्टेबिलिटी थ्रेटन हो, और उसके अलावा वो उसको डाइवर्ट नहीं करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स या किसी ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए जो कि थ्रेटन करेगी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को रीजन की. तो ये ऑब्जेक्टिव है वासेनार अरेंजमेंट का, ये आपको पता
इन कंटिन्यूएशन कि ऑब्वियसली मिलिट्री वेपन्स मेरे पास हैं, मान लीजिए रशिया और इंडिया मेंबर हैं, तो रशिया इंडिया को दे देगा, लेकिन रशिया ये इंश्योर करेगा कि इंडिया इनका प्रोलिफरेशन नहीं करेगा, यानी कि जो वेपन्स दिए हैं वो इंडिया अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करेगा, जस्ट टू एक्ट एज अ डिटरेंट टू द हॉस्टाइल नेशंस, दैट्स इट। इसका प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए मिलिट्री वेपन्स का। टू ट्रांसफर सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज एंड गुड्स विद एटमोस्ट कॉशन एंड केयर एंड ट्रांसपेरेंसी। टेररिस्ट ना इनको ले ले, एक्विजिशन ना कर ले, एक्वायर ना कर ले, इस तरीके से आपको देना है, और उन कंट्रीज़ को देना है जहाँ पे से टेररिस्ट ना ले पाए, यानी कि टेररिस्ट के हाथ में जाने से बचाना है ये टेक्नोलॉजी। टू रिपोर्ट टू द अरेंजमेंट सेक्रेटरीट, और साथ में जो भी इसके मेंबर्स होंगे ग्रुप के, वो रिपोर्ट करेंगे। क्या रिपोर्ट करेंगे? अगर वो कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि मान लीजिए इंडिया भी इसका वासेनार का मेंबर है और रशिया भी मेंबर है, तो इंडिया रशिया से जो भी सौदा करता है तो वो अरेंजमेंट सेक्रेटरीट को रिपोर्ट करेगा रशिया कि उसने क्या ट्रांसफ़र किया है और क्या आर्म्स ट्रांसफ़र किए हैं, क्या डुअल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किए हैं टू द डेस्टिनेशन आउटसाइड द अरेंजमेंट, नॉट ओनली आउटसाइड बट इनसाइड द अरेंजमेंट। तो इट हैज़ टू रिपोर्ट बोथ, कि बाहर जो आप भेज रहे हो और जो अंदर भेज रहे हो, ऑन 6 मंथली बेसिस। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ये अरेंजमेंट को देनी पड़ेगी सेक्रेटरीट को, जो कि वियना में है। नो द लास्ट स्लाइड, व्हाट बेनिफिट इंडिया इज गेटिंग। अब इंडिया क्योंकि ऑलरेडी मेंबर है वासेनार का, तो इंडिया को क्या फ़ायदा मिल रहा है? इंडिया इज ऑलरेडी ए मेंबर, एज यू ऑलरेडी नो। इंडिया बिकम्स ए मेंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट इन 2017 लास्ट, ठीक है, 2-3 साल होने वाले हैं इंडिया को इसका मेंबर हुए। तो क्या फ़ायदा हो रहा है इंडिया को? ऑब्वियसली एक्सेस टू डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़, इंडिया के लिए ईजी है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक्सेस मिलना, और इंडिया को मिल भी रहा है। आप जानते ही हैं जो इंडिया के बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जिससे इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर इक्विपमेंट और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सेटअप करने के लिए बहुत कंट्रीज़ हेल्प कर रही हैं। रशिया जैसे कुडानकुलम में हेल्प कर रहा है, और फ्रांस ने अभी रफाल दिए हैं जैसे हमारे देश को। फ्रांस इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज ऑल्सो परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, तो दैट कैन बी यूज फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री पर्पजेज। तो इंडिया कैन यूज इट फॉर सिविल एंड मिलिट्री, बट इंडिया हैज टू डिक्लेयर इट। दिस टेक्नोलॉजी कैन एड्रेस द डिमांड्स ऑफ इंडियन स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स, ऑब्वियसली। तो हम अपनी सिविल यूज़ के लिए भी कर रहे हैं और मिलिट्री के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो वासेनार का हम पार्टनर है, तो हमें डेफिनेटली हमें ओपन करना पड़ेगा जो भी हम खरीद रहे हैं और उसका क्या यूज़ कर रहे हैं। इट ओपन डोर्स इंडियाज डोर टू बिकम मेंबर ऑफ NSG। इंडिया अभी तक नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली क्योंकि इंडिया वासेनार का मेंबर है, तो NSG का मेंबर बनना बहुत ही, मतलब ये काफ़ी उसको वो करता है, ईजी पाथ देता है टू बिकम ए मेंबर ऑफ NSG। reaffirmation of India's credibility, obviously because India is a member of ASEAN, so it is affirmation of India's position as a responsible nation। भाई इंडिया को तभी मेंबर बनाया गया क्योंकि इसमें केवल रिस्पॉन्सिबल नेशंस पार्ट हो सकते हैं, कि विश्व मानता है कि इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल नेशन इन द एरेना ऑफ डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज बिसाइड्स ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स। और वो किसी कंट्री को ट्रांसफ़र नहीं करेगा आर्म्स जो कि खतरा बन सकें स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ऑफ द रीजन एंड of the world in larger perspective। बूस्ट टू डिफेंस एंड स्पेस सेगमेंट्स, जैसे आप जानते हैं DRDO और इसरो ने के पास क्रायोजेनिक जो रॉकेट हमारी टेक्नोलॉजी है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एटसेट्रा। नाउ दे विल बी रीअलाइनमेंट ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम में प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। तो अब इंडिया को ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ईजिली मिल पा रही हैं विदेशों से, बिकॉज इंडिया इज ए मेंबर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट प्लस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप प्लस MTCR, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इंडिया इज नाउ रीच टू हाई एंड बैटल टैंक्स, वॉरशिप्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी विद इट कैन यूज फॉर इट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये सब इंडिया को ईजिली बाहर से मिल पा रहा है, एंड परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। ऑब्वियसली इंडिया इज अ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन एंड स्टैंडर्ड, so being a part of Vasenar, it strengthened the bid for India for other major reforms like
become a member of NSG plus becoming a permanent member of United Nations Security Council in the international order. Okay, so वासेनार अरेंजमेंट एक इनफॉर्मल ग्रुप ज़रूर है, बट दैट इज़ इनफॉर्मल हो गया है, इनफॉर्मल में एक फॉर्मल ग्रुप हो गया है. कहने का मतलब है कि वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है, यूएन से इंडिपेंडेंट जरूर है, बट वासेनार का अगर आप मेंबर हो तो डेफिनेटली यू आर ए रिस्पॉन्सिबल नेशन एंड गेटिंग की टेक्नोलॉजी एंड गुड्स बोथ फॉर सिविल एंड मिलिट्री यूज इज कंपेरेटिवली ईजी. किस टाइप की गुड्स? 8 टाइप के गुड्स इसमें बताए गए हैं. मिसाइल टेक्नोलॉजी, वारशिप्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, बैटल टैंक्स वगैरह, ये सब गुड्स हैं इनके लिए. और साथ में कन्वेंशनल नाम से हैं, प्लस डुअल यूज़ मतलब जिनका आप दो या आप बहुत सिविल एंड मिलिट्री, जैसे न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो वो डुअल यूज़ में आता है. या उसके अलावा रॉकेट टेक्नोलॉजी है. अब रॉकेट आप स्पेस में भेजते हो, सैटेलाइट उसके अंदर भेजते हो, तो डेफिनेटली सिविल यूज़ के लिए होता है आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट. बट रॉकेट आप बनाते हो तो आप उसी टेक्नोलॉजी से आप वो बना सकते हो, मिसाइल्स बना सकते हो. भाई एक रॉकेट जो है वो बना के वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, दूसरा रॉकेट जिसको मिसाइल बोलते हैं वो किसी नेशन पर अटैक करने के लिए है, तो दैट इज़ ऑल्सो डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी. तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया को ईजिली मिल पा रही है, और लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम जिस काम के लिए दे रहे हैं इंडिया उसी काम के लिए यूज़ करेगा और कोई काम नहीं करेगा उसका. बट इंडिया भी डेफिनेटली डिक्लेयर करता है जो भी उसको मिलता है वासेनार ग्रुप को, बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वासेनार ग्रुप. इंडिया बिकम्स एक्चुअली 42nd मेंबर. अभी 42 मेंबर्स हैं इसके. इंडिया अभी 42वां मेंबर इंडिया ही बना है इसका, ठीक है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए वासेनार. नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की और MTCR की, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम. फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एक और लेक्चर में बनाऊंगा NSG के ऊपर. तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और MTCR के बारे में थोड़ा देख लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन दबा दें ताकि आपको कोई भी लेक्चर मैं अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू सो मच.